Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 7, Tribes, Nomads and Settled Communities. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 99 निकालेंगे। वहाँ से आज हम द होम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे पेज नंबर 99 निकालो और पढ़ेंगे हम अ होम के बारे में। The Homs migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century. They created a new state by suppressing the older political system of the Bhuians. During the 16th century, they annexed the kingdoms of the Chitales 1523 and of Koch Haju 1581 and subjugated many their tribes. The Ahoms built a large state, and for this they used firearms as early as the 1530s. By the 1660, they could even make high quality gunpowder and cannons. तो अभी हम अहोम के बारे में पढ़ेंगे कि अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने बुहैया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। However, the Ahoms faced many invasions from the southwest. In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahoms kingdom. Despite their brave defense, the Ahoms were defeated, but direct Mughal control over the region could not last long. लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। The home state depended upon forced labor. अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। Those forced to work for the state were called paiks. तो राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। वो क्या कहलाते थे? पाइक। Essentials of the village had to send a number of pikes by rotation. People from heavily populated areas were shifted to less populated places. Homes clans were thus broken up. By the first half of the 16th century, the administration became quite centralized. तो अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक बेचने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से
कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वाद्रव पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। Almost all adults served in the army during war. At other times, they were engaged in building dams, irrigation systems, and other public works. The Ahoms also introduced new methods of rice cultivation. तो लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। Ahom society was divided into clans or clans. There were very few castes or artisans, so artisans in the Ahom areas came from the adjoining kingdoms. A Khel often controlled several villages. The peasant was given land by his village community. Even the king could not take it away without the community's consent. तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सम्मति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। Originally, the Ahoms worshipped their own tribal gods. During the first half of the 17th century, however, the influence of Brahmins increased. Temples and Brahmins were granted land by the king. In the reigns of Sib Singh, 1740 to 1744, Hinduism became the predominant religion, but the Ahoms kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. तो शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। सिब सिंह 1714 से 1744 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम सोसाइटी was very sophisticated. Poets and scholars were given land grants. Theatre was encouraged. थिएटर क्या करते थे? थिएटरों को इनकरेज किया गया into the local language. Historical works known as Buranjis were also written, first in the Ahoms language and then in Assam's. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना आपको मैंने पढ़ाया है आप उसको दोबारा रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।